student. Today I am going to start a new chapter in science. Okay, chapter 12. Chapter 12 is force, work and energy. Okay, so open chapter, work, force and energy. It is given on page number 101. Okay, so see children, they are the topics of our chapter. Force, types of force. Types of force means different types of force like frictional force, balance force, gravitational force, magnetic and electrostatic force. Okay. Next topic is work, then energy and then types of energy. So one by one we will discuss the topic. Okay. So our first topic is what? Force. Okay. So student, force means होता है push and pull of an object. Okay. When we apply the force, the work is done. Okay. A force का मतलब होता है when we push a thing, it means we apply the force. When we pull a thing, it means apply the force. Okay. So student, force is a push or pull that makes an object move. Underline. Force is, what is force? Force is pull and push. Okay. So when we apply pull and push force, it means the object is moved. तो फोर्स इज नीडेड टू डू वर्क. ओके, कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोर्स की. जैसे व्हेन वी लिफ्ट अ बैग, जब हम किसी बैग को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, जैसे जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो वी अप्लाई द फोर्स. ओके, तो फोर्स हेल्प इन सिटिंग अ बॉडी इन मोशन. It can also help in stopping the body which is in motion. Okay, so force helps in setting a body in motion. It can also help in stopping the body which is in motion. So force is also said to be applied when an object is twisted. Okay, force is also said to be applied when an object is twisted, bent or squeezed. So force can also help in changing the shape. Okay, तो फोर्स इज सेड टू बी अप्लाइड. किस चीज़ में हम कह सकते हैं कि हमने फोर्स अप्लाइड किया है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्विस्टेड. ओके, जैसे आपने क्या किया, कैसे कोई ऑब्जेक्ट ट्विस्ट करेगा? जैसे हम एक कोई टूथपेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो? स्क्वीज करते हो ना. जब उसमें ख़त्म हो जाता है तो हम उसको स्क्वीज करके हम क्या कर रहे हैं? वी अप्लाई द फोर्स. ओके, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या निकलता है? ट्यूब से पेस्ट. ओके, तो फोर्स क्या क्या चीज़ में चेंजेस कर देता है. व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज ट्विस्टेड, ठीक है, बेंड, वो बेंड हो जाता है, और स्क्वीज. एंड फोर्स कैन ऑल्सो हेल्प द चेंजिंग द शेप एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द शेप. So force may also change the direction of the motion of an object. So force can also change the direction of the motion of an object. ओके, जैसे बेटा आपने कोई बॉल लिया, आपने उस बॉल को इधर की तरफ फेंका, ठीक है, अभी यहाँ पे ये बॉल है, तो बॉल क्या करेगी? इसको हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी. ओके, तो इट मीन्स फोर्स ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. Now there are various types of forces. These forces can be classified as what they are? Frictional force. बेटा बोलिए मैम के साथ बोलिए. Frictional force, balance force, magnetic force and electrostatic force. Okay, so one by one we will discuss the different types of force. So turn your page number 102. Types of forces. So first force is frictional force. Okay, students, the example is also given here. Okay, यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल में आपको दिया है. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे करके अप्लाई हो रहा है. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड वेयर वी यूज फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर. अंडरलाइन. फ्रिक्शनल फोर्स क्या आता है? फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर. अंडरलाइन. फ्रिक्शनल एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है. व्हेन यू प्ले कैरम, यू माइट हैव नोटिस दैट द कैरम मूव्स वेरी स्मूथली व्हेन देयर इज इनफ पाउडर ऑन द बोर्ड. आपने देखा होगा कि जब हम कैरम खेलते हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड होता है, उसमें कैरम खेलते हैं, तो अगर उस पर अच्छे से पाउडर डला है तो उसकी जो सरफेस हो जाती है वो क्या हो जाती है? बहुत स्मूथ हो जाती है. ओके, तो why is it so? Because frictional force is acting against the movement of the carom coin when there is less powder. Okay,
तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है बेटा, किसी चीज़ को रोकने का काम करता है। लेकिन जैसे हमने कैरम में पाउडर डाला, उसके बाद हमने जो होता है, क्या होता है उसका, कैरम कॉइन होता है, उसको जब चलाते हैं तो अगर उसकी सरफेस रफ होगी तो वो क्या करेगा, इट अप्लाइड मोर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, वो उस चीज़ को रोकने का काम करेगा। बट व्हेन वी अप्लाई पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस फ्रिक्शन, ठीक है, अब वो उसको रोक नहीं पा रहा है। ओके, तो स्मूथ सरफेस एक्टेड लेस फ्रिक्शन फोर्स। So because frictional force is acting against the movement of the carom coin when there is less powder, okay, and this force is known as frictional force. तो frictional force क्या होता है? It is a type of force that tries to stop the objects sliding across each other. Now frictional is important in our daily life. So did you ever try running on a floor which is smooth or wet? So it is very difficult. एक कोई स्मूथ सरफेस है या कोई वेट आपका फ्लोर है, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा, एक आप स्मूथ सरफेस पे चलो, एक रफ सरफेस पे चलो, तो क्या डिफरेंस है बेटा? देखो, इट इज़ वेरी इजी टू मूव इन रफ सरफेस। कोई रफ सरफेस है उसमें मूव करना बहुत इजी है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, लेस फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। बट इफ द फ्लोर इज वेरी स्मूथ, अगर बहुत स्मूथ होगा तो हमारा पैर क्या होगा, एकदम उसमें स्लिप कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया है, और फ्रिक्शनल फोर्स कम होने से वो हमारी बॉडी के मूवमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ये होता है कि इट ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। So water reduces the friction, and if you try to run or walk fast, you will slip and fall. अगर हम बहुत तेजी से किसी स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं, जैसे ये स्मूथ फ्लोर है और यहाँ पे हम दौड़ रहे हैं, तो हम क्या हो जाएगा, हम वहाँ पे गिर जाएंगे। और अगर वहाँ पे कोई पानी वानी गिरा है तो वहाँ पे भी हम क्या हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो जो वाटर है या स्मूथ सरफेस है, वो उसके फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, ग्राउंड के फ्रिक्शन को कम कर दे रहा है। Okay, so the sole of a new shoe is not smooth but rough. इसीलिए जो सोल होता है न्यू शू का, वो कैसा होता है, रफ होता है। This roughness increase the grip. तो इसीलिए जो रफनेस होती है, रफनेस मतलब वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो रफनेस इंक्रीज द ग्रिप, वो हमारी ग्रिप को क्या कर देता है, जो चलने की जो हमारी ग्रिप है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज, बड़ा कर देता है। Okay, now next type of force is balanced force. Balanced force means student equal force. Okay, देखो example is also given in seesaw. देखो, look at the picture. See the picture, seesaw. Okay, as the two children are of almost equal weight. ओके, अगर दो बच्चे यहाँ पे सीसॉ में बैठे हैं, उनका इक्वल वेट है दोनों तरफ, तो वो क्या, सीसॉ कैसे रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर एक बच्चे का वेट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, जिस तरफ वेट है उस तरफ साइड में वो झुक जाएगा। ओके, तो एज द टू चिल्ड्रन आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल वेट, दे आर नॉट मूविंग मच। ओके, ज़्यादा वो मूव नहीं करेगा। तो इन द टग ऑफ वॉर गेम्स आर शोन इन द फिगर। ओके, देखो टग ऑफ वॉर में भी देखिए, इफ बोथ द टीम्स आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, अगर दोनों टीम के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, मतलब बराबर ताकत है, जस्ट बैलेंस, उस टाइम तो वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। द रोप डज नॉट मूव। ओके, रोप बिल्कुल मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों टीम के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, बराबर ताकत है, तो वो रोप एक तरीके से बैलेंस रहेगी। बट इफ बोथ द केसेस we find that the force applied in the opposite direction are equal, so they are cancelling each other. वो कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर एक तरफ भी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, वो पीछे चले जाएंगे। ओके, सो द इक्वल फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। जैसे हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, अपोजिट में हमारा उतना ही इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द इक्वल force means balanced force. Okay student, okay student, this much for today's class. Now you have to find the answers of check yourself. Okay, thank you.